ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ नहीं। वो इसलिए नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, उनके तर्कों में दम नहीं है। अगर सरकार एमएसपी गारंटी दे देगी, मान लो सरसों पे भी 23 की 23 फसल आएंगी तो उसमें सरसों भी आ जाएगी, उसमें सूरजमुखी भी आ जाएगी, उसमें दलहन तिलहन की दाल भी आ जाएगी, सारी फसलें उसमें आ जाएगी। वो फसल भी पैदा होगी तो जो आज इंडोनेशिया मलेशिया से लगभग 1,40,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल मंगवाए जाते हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी अमाउंट पाम ऑयल की है, तो उसका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसका इंपोर्ट बंद होगा तो जो कॉर्पोरेट हाउस उसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं उनको आर्थिक नुकसान होगा। और पूरा देश जानता है कि पाम ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टरों में से एक मोदी जी और अमित शाह जी के जो बहुत करीबी माने जाते हैं गौतम अडानी जी हैं, उनकी कंपनियां हैं। आप जो 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल मंगवाए, जिसमें से ज्यादातर पाम ऑयल है, आप उसका इंपोर्ट बंद कीजिए। 31,172 करोड़ की दाल मंगवाई, इसका इंपोर्ट बंद कीजिए। आपके पास लगभग 1,73,000 करोड़ रुपया हो गया। 1,73,000 करोड़ रुपया आप अपने देश के किसानों को दीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੂਹਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਸ ਵਸਈਏ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੁਣ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ नहीं। वो क्यों नहीं आएंगे ये समझना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, उनके तर्कों में दम नहीं है। इनके बीजेपी वाले कह देते हैं बोला जी एमएसपी गारंटी कानून तो संभव नहीं है, इसमें तो 17 लाख करोड़ का खर्चा चाहिएगा। हम आज प्रूव करेंगे, बैठो हमारे साथ, मीडिया के सामने प्रूव करेंगे। मीडिया तो लोकतंत्र का एक स्तंभ है ना, आपके सामने प्रूव करेंगे। मैक्सिमम, मैं अपर लिमिट बता रहा हूं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए में एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। एक बात। दूसरी बात, और ऐसे ही नहीं कहेंगे कोई भी रिपोर्ट उठा के, हमारे देश में पिछले साल जो गेहूं की टोटल प्रोडक्शन थी वो एग्जैक्टली थी 1105.4 लाख मीट्रिक टन, 1105.4 लाख मीट्रिक टन। एक एक दाने का हिसाब है हमारे पास कि गवर्नमेंट कितना प्रोक्यूर करती है और कहाँ कितने का पैकेज्ड आटा बनता है, कितने का क्या होता है, सारी चीजें हमने बहुत
कई महीने की मेहनत के बाद हमारी टीम ने कलेक्ट करी है। मैं ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ। बताऊं आपको, देखिए अगर सरकार एमएसपी गारंटी दे देगी, मान लो सरसों पे भी 23 की 23 फसल आएंगी तो उसमें सरसों भी आ जाएगी, उसमें सूरजमुखी भी आ जाएगी, उसमें दलहन तिलहन की दाल भी आ जाएंगी, सारी फसलें उसमें आ जाएंगी। अगर उन पे एमएसपी गारंटी होगी तो हमारे देश के किसान वो फसल भी पैदा करेंगे। वो फसल भी पैदा होगी तो जो आज इंडोनेशिया मलेशिया से लगभग 1,40,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल मंगवाए जाते हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी अमाउंट पाम ऑयल की है, तो उसका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसका इंपोर्ट बंद होगा तो जो कॉर्पोरेट हाउस उसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं उनको आर्थिक नुकसान होगा। और पूरा देश जानता है कि पाम ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टरों में से एक मोदी जी और अमित शाह जी के जो बहुत करीबी माने जाते हैं गौतम अडानी जी हैं, उनकी कंपनियां हैं। तो अगर हमारे ही देश में किसानों को एमएसपी मिलने लग गया तो बाहर से आना बंद होगा। बाहर से आना बंद होगा तो जो इंपोर्ट करते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी जो रिसेंट डाटा आया है वो ये डाटा है, एक इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छापी है कि 45 लाख मीट्रिक टन दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं, ठीक है। और उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो लगभग 31,172.9 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 31,172.9 करोड़ रुपया। हम कह रहे हैं और चीजों को छोड़ देते हैं हम 2 मिनट के लिए। आप जो 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल मंगवाई जिसमें से ज्यादातर पाम ऑयल है, आप उसका इंपोर्ट बंद कीजिए। 31,172 करोड़ की दाल मंगवाई, इसका इंपोर्ट बंद कीजिए। आपके पास लगभग 1,73,000 करोड़ रुपया हो गया। 1,73,000 करोड़ रुपया आप अपने देश के किसानों को दीजिए। अगर 1,73,000 करोड़ रुपए में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तो ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਹੇ ਨੇ ਘਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਟਾਸ ਹੋਰ ਵੱਜੇ। देखिए, सवाल ना तो हमें हमारी कभी उनसे मिठास रही और ना ही हमें खटास से कोई फर्क पड़ता। ये लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का सवाल करना। मान लीजिए कोई छात्र, कोई स्टूडेंट 9वीं क्लास में है तो 10वीं में तो उसका एडमिशन जब ही होगा ना जब उसकी मार्कशीट बनेगी 9वीं की, जब उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, पास हुआ होगा जब भी तो 10वीं में जाएगा। तो इसी तरीके से ये चुनाव है। जो 5 साल पहले 10 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, जनता ये रिपोर्ट कार्ड तो चेक करेगी ना, या बिना रिपोर्ट कार्ड चेक हुए ही अगली क्लास में एडमिशन दे देंगे इनको। तो इसीलिए, और अकेली बात बीजेपी की नहीं है, हमने तो ये भी बोला है जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो अन्य विपक्षी पार्टियों के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, अकाली के लीडर हैं, हरियाणा में इनेलो के लीडर हैं, जजपा के लीडर हैं, यूपी में सपा बसपा के लीडर हैं, सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। और अभी आप देखिए, अभी तो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी लोकसभा सीटें घोषित नहीं करी, अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करे हैं। नहीं, देखिए, घेर हम बीजेपी वालों को भी नहीं रहे हैं। हमारा एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सवाल जवाब करो, और अगर वो सवालों का जवाब ना दें तो काले झंडे दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन करो। वही हो रहा है हर जगह। ये बेवजह ज्यादा पुलिस फोर्स लगा के अपने साथ कुछ गुंडे टाइप आदमी ला के भाजपा वाले माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के साथ भी होगा। कांग्रेस वालों से भी पूछा जाएगा, भाई आपका कर्ज माफी के मुद्दे पे क्या स्टैंड? अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे डिबेट थी तो वहां पे कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे थे, तो वो कह रहे थे, बोला जी हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा है एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। मैंने कहा चलिए अच्छी बात, हमने कहा, लेकिन आप ये बताइए किसानों की कर्ज माफी पे आपका क्या स्टैंड है? वो तो आपने क्लियर नहीं किया। भारत का खेती सेक्टर डब्ल्यूटीओ से बाहर है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? वो आपने क्लियर नहीं किया, क्योंकि 1994-95 में कांग्रेस की ही तो सरकार थी ना, जब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे साइन होके भारत का खेती सेक्टर डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ था, और उसी के बाद किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती चली गई। तो सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए, कांग्रेस से भी पूछे जाने चाहिए, भाजपा से भी पूछे जाने चाहिए। यही तो लोकतंत्र की निशानी है ना। अगर लोग गूंगे हो जाएंगे तो फिर संसद आवारा हो जाएगी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि गांव में जनता सवाल पूछे, तो संसद में बैठे लोग हैं, उनकी असली मालिक जनता है, वो देश के मालिक नहीं है, देश की असली मालिक जनता है। तो जनता जानना चाह रही है, जनता उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करना चाह रही है, उसमें क्या बुराई है? उसे पूछा जाना चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਪਰ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।